اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے، اور راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود۔ انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے علاقے کے۔ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔
اس میں کئی سال گزر گئے. لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا. جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نیا سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے. اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے. تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے. اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی. تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے. تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے. تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. وہ ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا. کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت. میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کا چلا لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرات پھیری لگاتا ہوں. پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے. میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری. اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری. پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو پھیری کہتے ہیں. تم خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا، بولنے کا نہیں ہے. ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو. نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو، جاتے رہتے ہو، جاتے رہتے ہو، جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی. اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا. اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے. دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے. دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا. تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے، کیا جھگڑا ہے. ان هذا اخی له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں. 99 بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو. نہیں، یہ تو لطیفہ سا بن گیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے،
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا چل ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رات ہے آ جاؤ ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا آجا آجا رات بڑی مزے کی چیز ہے تو اور میں تنہا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آ جاؤ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رات تیری میری دن میرے بندوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی قم اللیل الا قلیلا رات اللہ کے پاس آ جا دن میں کیا کر ان لک فی النہار سبحا طویلا تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحا طویلا دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے سبح تیرنے کو کہتے اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ میں نے بتایا تھا پہلے دن وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے جی سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحا طویلا حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا لیکن سبحا طویلا جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رک سکتا ہے کیوں بھائی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحا طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اے میرے محبوب اٹھ جا میرا پیغام سنا تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سنے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے ان لک فی النہار سبحا طویلا کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی
मैंने एक शख्स से कहा थोड़ा तबलीग में वक्त दे दो भाई। कहा जी मुझे गोलियां लगी थी तो उसके बाद मेरे बदन में दर्द होता है तो मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन मैं उसे देखता था वो सुबह से शाम तक अपने दुकान पे खड़ा होता था, खड़ा होकर काम करता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा ये तो दुकान पे खड़ा होता है, इसका दर्द तुम्हें नहीं होता? तबलीग में तो इतनी मशक्कत नहीं है। वो कहने लगा जी रोज दर्द बहुत होता है, लेकिन मैं जब शाम को पैसे गिनता हूं तो सारा दर्द चला जाता है, सारा दर्द चला जाता है। तो अब आप तबलीग में 3 दिन के लिए गए तो कुछ लगा के आते हो, हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, और चिल्ले के लिए जाओ तो कुछ लगता है, हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। 4 महीने के लिए जाओ तो कुछ लगता है, हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। तो वो जज्बा पैदा नहीं होता लगाने का, थकने का, थकाने का, जैसे दुनिया में पैदा होता है, उसकी वापसी नजर आ रही होती। तो इसलिए बार बार जरूरत है इसको सुनने और सुनाने की कि अल्लाह ने इस उम्मत को ये मनसब दिया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है। क्या करते हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, भलाई की बात करते हो, बुराई से रोकते हो, सिला मुझसे लेते हो। तुमिनून बिल्लाह, सिला मुझसे लेते हो, अल्लाह पे ईमान लाते हो। कल भी मैंने कहा था कि हर मुसलमान के जिम्मे दावत है, अमल करे या ना करे। आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि अमल करे या ना करे, औरों को दावत देना हर मुसलमान के जिम्मे है। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल के बारे में कहा मेरी तुम पे लानत है, लुअन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ए दाऊद ए ईसा इन पर लानत भेजो। कितना सख्त अल्लाह का फरमान है। अच्छा क्यों, किस लिए? अल्लाह ने दो जुर्म बताए, ज़ालिक बिमा असव व कानू यअतदून, ये बहुत नाफरमान हो चुके हैं, बहुत नाफरमान हो चुके हैं। एक इसकी वजह से इन पर अल्लाह की लानत। दूसरा क्या है? कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फअलूहु, जो गुनाह खुद कर रहे होते हैं उससे औरों को नहीं रोकते। कानू ला यतनाहून, नहीं रोकते थे, अन मुनकरिन, उस गुनाह से, फअलूहु, जिसे वो खुद कर रहे होते थे। तो इससे पता चला कि अगर कोई नाफरमानी भी कर रहा है तो किसी को अगर देखता है नाफरमानी करते तो उसे समझाना उसके जिम्मे है। यानी अल्लाह ताला ने, अल्लाह यूं कह रहा है कि कमबख्त खुद तो तू बुराई कर रहा था तो किसी को रोकता तो सही। दोनों ही काम नहीं किए, न खुद छोड़ा न किसी और को रोका। तो भाइयों, हरकत करते रहना, इस हरकत में बड़ी ताकत है। सारी कायनात हरकत में, अगर रुक जाए तो भाई जमीन हरकत कर रही है, सूरज हरकत कर रहा है, चांद सितारे हर शय हरकत में। तुम्हारी जमीन 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रोजाना भागी जा रही। पता चला कि पनामा बमे दोनों समंदरों के 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा जा रहा है। तुम्हारा सूरज 6 लाख मील 9 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। हरकत के साथ जिंदगी है, हरकत खत्म होगी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब लोगों ने हरकत की, अपने मुल्कों को छोड़कर आए, अल्लाह ने आपको रोजगार दे दिया, बाइज्जत रोजगार दे दिया। तो भाइयों, अल्लाह के दीन के लिए हरकत करते रहना, अमल भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक दिन देखोगे जिंदगी बदलेगी। हमारे बुजुर्ग थे, साथी फौत हो गए, तो उनका बेटा पीआई में कैप्टन था, जहाज उड़ाता था। तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया कर। कहा अब्बा फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम होते। कहा अच्छा चलो नमाज के वक्त एक आदमी को दावत दे दिया कर, 5 नमाजें हैं, 5 दफा दावत दे दिया कर। वो कहने लगा मैं दावत दूं, खुद तो मैं पढ़ता नहीं, दूसरे को कैसे दावत दूं? कहा बेटा एक तो मेरी मान ले, नमाज का इनकार किया है तो ये तो मान ले कि चलो किसी को कह दिया करके भाई नमाज पढ़ा करो। कहा चलो ये तो आसान है, मैं कह दूंगा। तो उसने अपने अब्बा की बात मान ली, हर नमाज पे 1-2 को कह देता भाई नमाज पढ़ा करो।
उसके वालिद फौज में जर्नैल थे, ये कैप्टन था, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। 6 महीने बाद बाप बेटा की मुलाकात हुई तो देखा तो कप्तान साहब की दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब भी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तो कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। का इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए। तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी, मैं दाढ़ी भी रख ली। तो तबलीग का काम करते रहना, हम फरिश्ते नहीं बन सकते। एक दफा एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारे कौल और फेल में बहुत फर्क बहुत। जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने उनसे कहा भाई 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं मांगे, आप क्यों मांगते हो? अल्लाह ने कहा है फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी गुनाह थोड़े होंगे तो पास कर दूंगी। तो 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक गुनाह तेरे खाते में नहीं होना चाहिए। 100/100 नंबर लेगा तो जन्नत दूंगा, नहीं तो रैपट मार के जहन्नम में डालूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगता, उसे पता है मेरा बंदा कमजोर है, कभी गुनाह करेगा कभी नेकी करेगा। तो वो कहता है जिसके पास 51 नेकियां हुई और 50 गुनाह हुए तोलूंगा तो 51 झुक जाएंगे ना, 50 माफ। मिसाल दे रहा हूं, हमारे इलाके में एक जिम्मेदार थे, वो जिक्र भी बहुत करते थे, गालियां भी बहुत देते। इधर सुभान अल्लाह तेरे फलाने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक फक्कड़ तोलते थे, सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि मियां साहब आपके साथ क्या हुआ? आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद उन्हें पूछ रहा है आप तो गालियां बहुत देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ? कि अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी ही नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते तुम करते कुछ हो कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा रब मेरे कहने के तो फैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं फिर खतरनाक है। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब, वो ये आयत है। लेकिन अगर मेरे अंदर इखलास है तो फिर मैं इंसान हूं, कभी अच्छा करूंगा कभी बुरा करूंगा, लेकिन मेरे ज़िम्मे सदा लगाना है। तो भाइयों इस तबलीग के काम को करते रहना, करते रहना, इससे ईमान बनता है। ईमान से दीन वजूद में आता है। दीन के 2 हिस्से हैं, एक इबादत है जिसमें नमाज सबसे अहम है। फेरी पे हो घर पे हो नमाज ना छोड़ो। रमजान के रोजे हैं, अल्लाह फिर रिस्क ज्यादा दे दे, हज करो, ज़कात दो। लेकिन इबादत बड़ी महदूद हैं और उसमें कसरत अल्लाह ने मुतालबा भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसमें एतदाल ही को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने हमारे नबी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया, कब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे नबी मैंने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं दिया कि तू लंबी लंबी नमाजें पढ़ के थकता रहे, दरमियाना चल दरमियाना चल। अल्लाह के नबी ने तबलीग में ज्यादा जोर दिखाया तो अल्लाह ने उस पर भी कहा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, इतना गम ना किया करके तो खुद ही हलाक हो जाए, मत नहीं, ऐसा ना कर। तो इबादत महदूद हैं और उसमें एतदाल मतलूब है। सारा दिन मुसल्ले पे बैठना ये अल्लाह नहीं देखना चाहता। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तू बाहर जाता कि मैं देखूं कि अब तू क्या करता है। दूसरा हिस्सा इसका अखलाकियात है, आपस की मुआशरत है। दीन जो असरअंदाज होता है वो मुआशरत से असरअंदाज होता है, इबादत से नहीं। इबादत से नहीं, इबादत तो मस्जिद के अंदर है या मुसल्ले पर घर के अंदर है, रोजा अंदर की चीज है, हज बैतुल्लाह में है, ज़कात मुसलमान को दी जाती है। तो दुनिया में दीन फैलने के लिए और अपनों को दीन के करीब करने के लिए जो सबसे बड़ा अमल है
वो भाइयों अच्छे अखलाक। ये दूसरा हिस्सा मैं आज बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युल इस्लाम औफक, मुझे बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो सहाबा ने कहा अल जिहाद, या रसूल अल्लाह जिहाद। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा जिहाद। तो आपने कहा वह हसन वमा हुआ बिही, हाँ जिहाद बहुत अच्छा अमल है, लेकिन सबसे बड़ा अमल नहीं है, सबसे मजबूत अमल नहीं है। उन्होंने कहा जी अस्सला, नमाज। तो आपने कहा हाँ वह हसनतुन वमा हिया बिहा, नमाज भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूं, सबसे आला, सबसे ऊपर, सबसे मजबूत नहीं। तो उन्होंने कहा जी अल हज, हज। तो आपने कहा हज भी बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। फिर सहाबा ने कहा जी रोजा, आपका रोजा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आप ही बताएं, हमें तो नहीं पता। तो हमारे नबी इबादत से ऊपर ला रहे हैं, अपने साथियों को इबादत पे कायम कर दिया। हर आदमी नमाजी बन चुका है, हर आदमी रोजेदार बन चुका है, हर आदमी मालदार ज़कात देने वाला बन चुका है, और हर आदमी हज का जज्बा पैदा कर चुका है। अब आप उनको अखलाक पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तकमील अखलाक से है। इस्लाम को तशबीह दी गई है घर के साथ, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन। तो बुनिया का लफ्ज इमारत पर बोला जाता है। तो इस्लाम की बुनियाद में है कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद तो नहीं कहेंगे ना। हाँ जी बुनियादें डाल दी हैं, छत डालनी है, जब छत पड़ेगी तो फिर ये मस्जिद कहलाएगी। तो इस्लाम की बुनियाद कायम हो चुकी थी, अब आप छत डालना चाहते थे। छत क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं। तो अब आप उनको ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। तो आपने जब पूछा तो उन्होंने वही कहा जो उन्होंने अभी सीखा था, नमाज, रोजा, जिहाद, हज। लेकिन आपने सबकी नफी कर दी, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा या रसूलल्लाह आप बताएं। तो आपने फरमाया इन औसक़ उरल इस्लाम अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो मोहब्बत है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो भाइयों ये छोटा सा मुआशरा इस्लामी बन जाए, इसके लिए बुनियाद मैंने पहले बता दी, अब छत बता रहा हूं, वो हैं अच्छे अखलाक। अल्लाह ताला ने जब हमारे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी तो अल्लाह ने कहा दरमियानी पढ़ो, मैंने अभी बताया। तबलीग में दुख ज्यादा झेला तो अल्लाह ने कहा दरमियाना चलो। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अखलाक बुलंद किए, अखलाक, तो इस पर भी अल्लाह ताला फरमाता मेरे नबी जरा इतना नरम ना हो, थोड़ा सा सख्ती दिखा, आंखें दिखा, थोड़ा शूशा कर है। तो मेरे रब ने क्या कहा? वाह, मेरे रब ने आपके अखलाक की जैसी तारीफ की है, आपके किसी अमल की ऐसी तारीफ नहीं की। नमाज को कहा मुतदिल, एतदाल, दावत को कहा एतदाल, और अखलाक को क्या कहा? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और उसको ताकत पहुंचाई कसम उठा के, नून। फिर कसम उठाई कलम की जो इल्म का जरिया है, वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमत रब्बक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। इन दो आयतों को छोड़कर अगली जो आयत आ रही, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब मैं कसम उठाता हूं कलम और उसकी तहरीर की, तेरे अखलाक बड़े आलीशान हैं। ये नहीं कहा तेरे अखलाक बड़े आली हैं। इन्नका लअला, अला, अला का यहां बहुत अजीम शान किरदार है। अला ये बता रहा है कि ए मेरे नबी जितने अखलाक तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सब तेरे ताबे हो चुके हैं, और तू उन पे सवार हो चुका है, तू उन पे छा चुका। अला छा जाने के लिए होता है कि तमाम अखलाक तेरे गुलाम हो चुके। एक दफा आपने फरमाया अच्छे अखलाक 360 किस्म है, 360 किस्म, 360 सिफात का मजमुआ अच्छे अखलाक। कोई एक सिफत किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाएगा।
तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह अफी यमिनहा शै, उन 360 में कोई मेरे अंदर भी कुछ है? तो आपने कहा तेरे अंदर सारे का सारा, कोई कमी कोई नहीं, पूरे। ये आपने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ आपने ये अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर तेरे अंदर पूरे अखलाक 360। तो भाइयों, आपस की मोहब्बत और अच्छे अखलाक ये इस्लाम का सबसे चोटी का सबक, सबसे आला दर्जे का सबक। अब एक हदीस में जो हदीस जिब्रील कहलाती है, वो इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम है। यही सवाल अब आखिरी हज का मौका आ चुका है, अब इस्लाम 9 साल आगे, 10 साल आगे जा चुका है और उसकी शक्ल मुकम्मल हो चुकी है। तो अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आखिरी हज के मौके पर आपसे मिलते हैं और आकर ये आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम। सवाल एक है, मल इस्लाम। शुरू में मदीने के दाखिले के शुरू में जिब्रील इंसानी शक्ल में आते हैं और कहते हैं मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब यही सवाल 10 साल के बाद या 9 साल के बाद अमर बिन अबसा कहते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब जवाब सुनो, आपने फरमाया इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। किसी से मीठा बोल बोलना कितना अजीम है मेरे नबी की, मेरे अल्लाह की बारगाह में कि आपने फरमाया इब्तिसामुका फी वजह अखीका सदका। तो अगर किसी मुसलमान को हंस के मिल ले तो ये भी तेरे लिए सदके का सवाब है, सदका लिखा जाएगा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप फरमाते हैं अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, नबियों को मानना, किताबों को मानना, तकदीर को मानना, मौत के बाद की जिंदगी का इकरार करना। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बास बअदल मौत, ये है इब्तिदाई जवाब। अब यही सवाल अमर बिन अबसा करते हैं 9 साल के बाद, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना, माफ करना। सवाल एक है, जवाब 2 हैं। क्यों? कि जगह और नौइयत बदल चुकी है। इब्तिदाए इस्लाम है तो इबादत बताई जा रही हैं, इंतहाई इस्लाम है तो अखलाक बताए जा रहे हैं कि ए अमर, ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना, सब्र करना, माफ करना। तो भाइयों, जो हमारा माशरा बनेगा इस्लामी, घर में बाहर, वो बनेगा अच्छे अखलाक से, इबादत से नहीं, इल्म से नहीं, तबलीग से नहीं, वो बनेगा अच्छे अखलाक से, मीठे बोल बोलने से, दरगुजर करने से, माफ करने से, सह जाने से, और बाजार में सच्चाई। बाजार में मीठा बोल नहीं, वो तो हर ताजर मुस्कुरा के मिलता है। हाँ, वो तो कारोबार है मुस्कुराना। सच्चा बोल, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, मेरे नबी ने फरमाया सच नजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। तो बाजार के अखलाक हैं सही बोलना, सही तोलना, धोखा न देना। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, डरपोक? आपने कहा हो सकता है। कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान बखील हो सकता है, बखील, कंजूस? आपने कहा हो सकता है। कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने कहा झूठ नहीं बोल सकता। आपने फरमाया मैं अपने उम्मत में हर ऐब की तवक्को रखता हूं कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, लेकिन 2 काम नहीं कर सकेगा अगर वो मेरा उम्मती है। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और ये दोनों काम हमारे पूरे उरूज पर है। तो मुसलमान धोखा नहीं देता किसी को, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरे से, वो मुझसे नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं। जो रोजा नहीं रखता मेरी उम्मत में से नहीं है, ज़कात नहीं देता मेरी उम्मत में से, ये नहीं कहा। आपने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो मेरी उम्मत में से नहीं, मेरी उम्मत से खारिज। तो आपकी तिजारत पनामा में ऐसी तिजारतों को वो इस्लाम कबूल तो सबूत बन जाए। आपकी जॉब है तो ऐसी हो कि इस्लाम की
पूरा इंडोनेशिया जो मुसलमान हुआ है, मुसलमान ताजरों की तिजारत से मुसलमान हुआ। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इन इलाकों में जितना इस्लाम फैला है ये ताजरों की मेहनत से फैला है। कहां के ताजर? यमन के अरब ताजर। उनके आली अखलाक, उनका सच्चा बोल, उनका सही तराजू, उसने लोगों के कुलूब को फेर दिया कि ये पैसे के गुलाम नहीं है। तो हमारी तिजारत इसलिए नहीं कि हम पैसा बनाएं, हमारी तिजारत इसलिए कि हम तिजारत में अल्लाह के अहकाम जिंदा करें, जिसमें सबसे बड़ा हुक्म सच बोलना है और धोखे से बचना है और गलत कारोबार से, गलत काम से बचना है। सिर्फ हम पैसा नहीं कमाते, हम अल्लाह का अमर देखते हैं कि अगर मेरे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो ठीक, अगर उसके मुताबिक हम छोड़ दें। तो भाइयों, अपनी पहचान करवाओ सच्चाई के साथ, दयानत के साथ, धोखे से बचते हुए। एक ताजर मुझे बड़े फख्र से बता रहा, फैसलाबाद की बात, कल मैं सुबह सुबह कुरान पढ़ रहा था, दुकान पे बैठा हुआ, कपड़े का ताजर। तो एक गाहक आ गया, कहा जी आप कुरान पढ़ रहे हो, भले आदमी लगते हो, तो मैंने बेटी के जहेज के लिए कपड़ा खरीदना है, तो मैंने कहा आपसे खरीद लेता हूं। तो वो फिर हंस के कहना, जी मैंने जी 16 रुपए मीटर वाला कपड़ा 48 रुपए मीटर में बेच दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, कुरान की कीमत बड़ी थोड़ी लगाई था। हाय 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 हाय, उसको शर्म भी नहीं आ रही इस बात पर, एहसास ही कोई नहीं कि उसने कुरान पढ़ते देखकर एतमाद किया और उसने कुरान से ही उसको धोखा दिया कि पूरे बाजार में 16 रुपए गज है वो कपड़ा, वो 48 रुपए उसको बेच रहा है। अगर हो अपने नबी की बात सुनो, आपने कहा सच्चा ताजर क़यामत के दिन नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा। क्यों? कि हर मौके पे झूठ बोला जा सकता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, और उससे बचता है, बचता है, बचता है, बचता है। ना अपनों को धोखा देता है, ना गैरों को धोखा देता है। जब अंग्रेज का दौर था तो वो एक दिल्ली में एक जेब कतरा था, जेब काटने में, तो वो ये सिखाया करता था लड़कों को, फिर उनको भेजता था। तो उसका एक चेला शाम को सिर्फ 2 रुपए लेकर आया, 2 रुपए लेकर। तो उसने कहा बेवकूफ, आज सारे दिन की कमाई 2 रुपए? का उस्ताद आज बहुत बड़ा माल मारा था, लेकिन मैंने देखा तो वो एक गोरा था, अंग्रेज था। तो मुझे ख्याल आया अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरी उम्मती की जेब काटी थी, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिया, अभी अपने के खिसका के लाया हूं 2 रुपए। तो पिछले जमाने के तो चोर भी ऐसे खुददार होते थे, अब तो नमाजी ऐसे गैरत कहां फेंक के आ गए हैं, माथे पे मेहराब होता है और धोखे में सबसे अव्वल होता है। तो हमारा इस्लाम सिर्फ इस मस्जिद की 4 दीवारी में नहीं है, हमारा इस्लाम तो बारिश के कतरों की तरह फैला हुआ है। आसमान की बुलंदी है, आसमान की वसअत है, जैसे इससे ज्यादा हमारे दीन की वसअत है। तो आप किसी दफ्तर में हो या अपने कारोबार में हो, तो उसमें भी अल्लाह के नबी ने आपको तरीका बताया है। तो बाजार के अखलाक हैं मुस्कुराना नहीं, बाजार के अखलाक हैं सच बोलना, सही देना, सही तोलना, सही सौदे का ऐब बताना। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, वो पहले 10 सहाबा में आते हैं, पहले 10 सहाबा। आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, अब्दुर्रहमान जन्नती, अबू बैदा जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती। उसमें एक अब्दुर्रहमान। जब इनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े तरका। हमें तो बड़ा बेवकूफ बनाया गया, कागज को करेंसी बना के दे दी। कागज, करेंसी तो सोना होता है जी, करेंसी तो सोने और चांदी को कहते हैं,
कागज के टुकड़े को तो करेंसी नहीं कहते, और अब करेंसी भी लेकर वो कार्ड पकड़ा दिए, जेब भी खाली, अब करेंसी भी, कागज भी कोई नहीं, खाली कार्ड। उसको क्या कहते हैं कार्ड को? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाए हुए, या तो कागज पकड़ाए हुए हैं या कार्ड कागज भी अब वापस ले लिया, अब कार्ड पकड़ा दिया। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो पैसे छोड़े वो कागज नहीं थे। कागज की क्या हैसियत, पाकिस्तान में रोज छप रहे हैं, कागज की क्या हैसियत? 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार सोने के, और एक सिक्का दीनार उस वक्त 4.5 माशे का होता था। अब उसको मल्टीप्लाई करो और पूरा पनामा खरीद लेंगे उस पैसों से। और वो टॉप लिस्ट के टॉप 10 सहाबा में से एक। वो फरमाते थे मेरी तिजारत का ये उसूल रहा कि मैंने कभी उधार नहीं खरीदा, न कभी उधार बेचा, न कभी उधार खरीदा। जो खरीदे भी उधार और बेचे भी उधार, उसे नींद कहां आएगी? देने वाले देते नहीं, लेने वाले सर पे खड़े होते। उन्हें ना बीवी अच्छी लगती ना बच्चे अच्छे लगते, वो घर में बैठ के भी घर में नहीं होते। तो आपने फरमाया ना मैंने कभी उधार खरीदा, न कभी उधार बेचा, नकद खरीदा नकद बेचा। दूसरा मेरा उसूल ये रहा कि मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, जब मुझे प्रॉफिट मिला मैंने फौरन बेच दिया। इंतजार नहीं किया एक हफ्ते बाद बेचूंगा रेट बढ़ जाएगा। जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिला, 1 पैसा भी मिला तो मैंने फौरन बेच दिया। तीसरा उसूल ये था कि मेरे सौदे में कोई कमी या ऐब होता तो मैं उसे छुपाता नहीं था, जाहिर करता था इसमें ये कमी है, भाई लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। मदीने के लोग जिम्मेदारा करते थे, मक्का के लोग तिजारत करते थे। उनकी ज़राअत और तिजारत दीन के फैलने का जरिया बन गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। जंग तबूक में 10,000 आदमियों का सामान हजरत उस्मान अकेले ने दिया। 30,000 का लश्कर था तो 1/3 10,000 का सारा सामान उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर से दिया। और वो पैसे दीनार लाके पेश किए ना, तो अल्लाह के नबी वो दीनार लेकर यूं कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मा अला उस्मान अल्लाह यामल बअदा उस्मान, आज के बाद तो कुछ ना कर, जन्नत वाजिब हो गई तेरे पे। तो भाइयों, हमारा दीन सिर्फ हमें इबादत नहीं बताता, बाजार की जिंदगी बताता है कि मुसलमान बाजार में कैसे होता है। किसी के यहां मुलाजिम है तो उसकी नौकरी कैसी होती है, उसकी दयानत कैसी होती है, उसका बोल कैसा होता है। वो पैसे पे कुर्बान नहीं होता, वो पैसे को ईमान पे कुर्बान करता है। तो आपकी तिजारत भी दीन के फैलने का जरिया बनेगी। आहा, सिर्फ नमाज से गुनाह माफ नहीं होते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन अमसा कालन बेअमल यदिही अमसा मगफूरन लहू, जो सुबह से शाम तक रोजी कमाते कमाते हलाल 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 हलाल, झूठ वाली नहीं, खोट वाली नहीं, खयानत वाली नहीं, हराम चीज नहीं। हराम चीज का बेचना भी हराम है, खरीदना भी हराम है, उसका प्रॉफिट भी हराम है। जिस घर में हराम पैसा जाएगा वहां सुख कभी नहीं आएगा। चीजें आ जाएंगी, चैन निकल जाएगा। 1960 की दहाई में एक पाकिस्तान का अफसर था, उसने 1960 में लोगों के पास 100 रुपए मुश्किल से होते थे, उसने उस जमाने में करोड़ों रुपए जमा किए रिश्वत से। बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। जब वो मर गया, एक दिन उसका बेटा कह रहा था, काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो कोई खुशी का दिन हम भी देख लेते। जिनके लिए जमा किया था कि मेरे बच्चे मजे से, मैंने खुद अपने कानों से उसको ये कहते हुए सुना कई दफा, मैं आज मर जाऊं मेरी बच्ची को किसी की परवाह नहीं कि मैंने इतना पैसा बना दिया है। तो उसी का बच्चा ये कह रहा था
काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो हम भी कोई खुशी का दिन देख लेते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमसा कालन बिअमल यदिही अमसा मगफूरन लहू, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है और थक के वापस आता है तो उसके उस दिन के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता। तो हमारा बाजार भी दीन है भाई, फिर हमारा घर भी दीन है, घर की जिंदगी दीन है। मेरे नबी ने घर की जिंदगी समझाई। आप अपने घर में झाड़ू दे रहे हैं, क़ाब क़ौसैन का टाइटल लेकर, मकाम महमूद का टाइटल लेकर, खत्म नबूवत का ताज सर पे सजाकर, नबियों की सरदारी का सेहरा बांध कर आप घर में झाड़ू दे रहे हैं। अपने कपड़े खुद धो, ये भी तेरे लिए सदका है। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने बच्चों पर खर्च करो। फिर दुनिया दुखों का घर है तो मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर। आगे आने वाले सारे जमानों को देखकर बयान फरमा गए, बता गए। और उन्होंने फरमाया, मुझे बताओ जिहाद में खर्च करने से भी बेहतर खर्च कौन सा है? जिहाद में खर्च करना तो सबसे बेहतर शुमार होता है। आपने कहा, मुझे बताओ जिहाद में खर्च करने से भी बेहतर कौन सा खर्च है? तो सहाबा ने कहा, जी हम तो नहीं जानते, हम तो इसी को सबसे बेहतर जानते हैं। हम कहा नहीं, औलाद का माँ बाप पे खर्च करना जिहाद में खर्च करने से भी बेहतर है। ये क्यों फरमाया? कि आगे नजर आ रहा था कि औलाद नाफरमान निकलेगी।